दैट्स द सेम आइडिया जो जिसपे आप इतने सालों से चीजें कर रहे हो, और दैट इज हैप्पीनेस। और खुश आप तभी रह सकते हो जब आप अंदर से खुश हो। आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज खुश नहीं रख सकती है लाइफ में, टिल द टाइम यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। हम कहते हैं जैसे कि आत्मा से खुशी होनी चाहिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। So hi everyone, this is me Jyotika Bedi, your host and founder of Happiness is Love. Today we have with us a very young creative artist who has used his special gifts to integrate creativity, music and spirituality to spread more happiness and joy. Welcome Virus. Thank you so much. Thank you. Thank you for joining us. And I wanted to talk to our audience today about how creativity and spirituality are often entwined, each enriching the other with profound ways. And I love musicians, I love creative energy because they help us in a powerful expression of spirituality and love. And today I see that a lot of young people just like you have found very unique and meaningful ways to connect creativity with people. In this dynamic, diverse and digital world, you all have been able to connect with the hearts of the people. So more power to you. And I want to explore your journey. थोड़ा सा बताइए Virus about how did you start your musical journey? कैसी शुरुआत हुई and where it's brought you here today. So tell us a little bit about your success also. So basically, like with every other artist, it was like a passion, not profession. But the passion, I converted this passion into profession. So it's been almost 10 years. Like I started back in 2014-15, and at that time I just wanted to give it a try. That okay, let's see, let's create something. Let people decide that whatever I'm creating, whatever things I'm doing. So then people started liking my work. I did my first track, and it became a banger. And then it came viral ho chukka. So Bum Bole was that track, and I did it in 2017. और वो एक ऑडियो गाना हमने किया था, and it was on YouTube. It went viral on TikTok and every other social media platform. So when it started getting viral, so then I was getting response. I was getting more work from other music labels and everything. So then I was doing it continuously till 2020 when it came into Bollywood also. So it was in the movie Lakshmi, and Akshay Kumar performed it so well that it became again like it. The song got revived, and now every year like on Shivratri or beat Sawan ka jab bhi time aata hai, so the song is again and again it's reviving, and I think it's his track. Bholenath ka गाना है, तो वो एक लंबा ही चलता ही रहेगा. So like I feel really good that I got the opportunity to do that. Yes. Yeah. और गाने में जोश इतना है कि सुनते ही ना suddenly you feel energized. Right. और आपकी जर्नी कैसे रही? Of course hardships भी होंगे, challenges भी होंगे. उसको आपने बिल्कुल. हाँ जी. When you initially start ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो. So it was the same way when I started. I never thought कि किस डायरेक्शन में जाना है या किस तरह से जाना है. Because कई बार क्या होता है, when you plan things and you don't achieve them, then you feel bad about it and you like feel disheartened. So that kind of thing I never wanted to be in that. So I thought that let's go with the flow, do however things are happening. You do your thing, you create good stuff, and you let people decide. अगर अच्छा होगा, गाना चलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे. अगर गाना नहीं चलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में देयर इज नो प्लेस फॉर फ्लॉप्स. तो बहुत सारे गाने रिलीज होते हैं, हर दिन होते हैं, बट अगर नहीं चलता है किसी आर्टिस्ट का गाना, तो ऐसा नहीं है कि 4 गाने नहीं चल रहे तो 5वां गाना चल जाए, 6. So you have to be consistent, keep delivering, keep doing your work. तो मेरी जर्नी भी वैसी रही. I kept on doing it. 2017 में फिर वो पहला गाना आया, एंड उससे पहले काफी चीजें करी, काफी लोगों के साथ बैठा. Like I was there in Mumbai. I was working with one of the best musicians वहाँ पे, और काफी कुछ सीखने को मिला और वहाँ से काफी एक्सपीरियंस लिया. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव नॉट
सैट समवेयर किसी क्लास में सीखा है आपने, आई हैव बीन देयर, और मैंने सब अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करके चीजों को सीखा है, और ये सारे एक्सपीरियंस आप खुद लाइफ में नहीं ले सकते, सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल आल्सो। सो जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उससे भी बहुत सारी हेल्प मिली, और जहाँ पे आज हैं बहुत अच्छे हैं, और जहाँ पे आगे होंगे वो और अच्छे होंगे, भोलेनाथ रखें ऐसे ही। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आप मुझे बताएं व्हाट ड्रॉज यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज़ मैंने आपका कंटेंट देखा है, वो बहुत डिवोशनल है, तो ये कहाँ से आती है आपको एनर्जी? So that's the same idea जो जिसपे आप इतने सालों से चीजें कर रहे हो, और that is happiness। और खुश आप तभी रह सकते हो जब आप अंदर से खुश हो। आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज खुश नहीं रख सकती है लाइफ में, till the time you are not happy from inside। हम कहते हैं जैसे कि आत्मा से खुशी होनी चाहिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और when I was into this thing like music के साथ ही साथ I was reading a lot about like spirituality के बारे में, meditation के बारे में और चीज़ों के, और मैं शिव जी के बारे में बहुत पढ़ रहा था because I was writing content on शिव जी specifically। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपके अंदर ही वो पावर है, आपके अंदर ही वो चीज़ें हैं। You have to just sit, relax and get it, मतलब उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है सिर्फ। तो अपने आप से जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप बाहर दुनिया से कनेक्ट करना चाह रहे हो लेकिन आप खुद से कनेक्टेड नहीं, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो देयर इज अ यूनिवर्स इनसाइड, देयर इज अ यूनिवर्स आउटसाइड, यू कनेक्ट विद योर यूनिवर्स एंड बाकी यूनिवर्स जो है वो आपके साथ अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, and universe is always conspiring to make good things happen for us. Everything is happening for our higher good. राइट। सो यू हैव टू लाइक उस चीज को समझना भी होता है ना। आप हर पल को अगर जी रहे हो लेकिन वो सिर्फ काट रहे हो, उससे फील नहीं कर रहे हो, मतलब आपने पानी भी पिया ना, तो यू शुड फील इट। Yes. आपने कुछ खाया है तो यू शुड टेस्ट इट, और वो चीज आनी चाहिए आपके अंदर कि आपको पता चले कि हाँ मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ वो मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। लाइक द वे वी आर टॉकिंग नाउ, तो मुझे अगर उसमें मजा नहीं आ रहा होगा या फील नहीं आ रहा होगा तो वो उसका करना बेकार है, वो फिर बातें वैसे निकलेंगी नहीं, मैं वो अच्छी बात कर ही नहीं पाऊंगा, या जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइब बनना। मैं आपको मिली नहीं हूँ, but I already love you. Bless you and lots of my love for you. Thank you, Stay thank happy you, thank you। always. And I really believe that world belongs to creative people. जो creative लोग हैं ना, वो ही अब आगे वर्ल्ड का सुधार करेंगे, वो ही वर्ल्ड को बेटर बनाएंगे। वर्ल्ड का सुधार तो क्रिएटिव पीपल ही करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि क्रिएशन आती है ब्रह्मा जी से, और वही क्रिएटर है। तो जो भी क्रिएटिविटी की फील्ड में होगा वही आगे जाएगा। तो उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया, तो यू हैव टू क्रिएट थिंग्स अकॉर्डिंगली। 100%। अच्छा, और मुझे ये भी बताइए कि म्यूजिक हैप्पीनेस, हाउ डज म्यूजिक क्रिएट हैप्पीनेस? आई मीन आई वांट माय ऑडियंस टू नो, बिकॉज़ मैंने ये देखा है जो भी क्रिएटिव यंग क्रिएटिव आर्टिस्ट्स हैं वो मोस्टली दे हैव दैट वाइब, दे आर इंटरनली जॉयफुल। तो कैसे होता है ये मैजिक, कहाँ से आता है? मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली म्यूजिशियंस आर जॉयफुल, पर हर केस में भी ऐसा नहीं होता। और मेरे तो जितने भी साथ में लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, या मेरे को कोई और भी नए म्यूजिशियंस कभी भी मिलते हैं, कोई आर्टिस्ट मिलता है, तो मेरा यही फोकस होता है कि जस्ट टू लेट देम नो कि यार ये खुद से जो है ना वो खुश रहने से ही चीजें अच्छी होंगी। तो कई बार आप बहुत कुछ कर रहे होते हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हो, एंड यू गेट डिप्रेस्ड, यू फील लाइक यू स्टार्ट फीलिंग कि चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, द थिंग्स आर नॉट फॉलोइंग इन माय वे। तो वो वाली चीज नहीं आपको कभी कभी रियलाइज होती है, तो आप थोड़ा सा वो हो जाते हो कि डिप्रेस वाली फील में। बट अगर एक म्यूजिशियन अपने काम के साथ 100% दे रहा है, अपने काम के साथ बिल्कुल फेथफुल है, और आर्ट को आर्ट की तरह कर रहा है, आर्ट को बिजनेस की तरह नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो फिर राइट आपको दिखने लग जाती है, चीजें सही होने लग जाती है। तो वो हैप्पीनेस जो है ना वो आपको आपके काम से ही मिलेगी। जब आपके काम की कोई तारीफ करेगा ना, उससे ज्यादा खुशी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यू क्रिएटेड समवन, मतलब एक चीज आपने क्रिएट करी है। जैसे आप ये समझो कि अगर आपका बच्चा है, जैसे गाना हमने बनाया, गाना हमारा बच्चा है, तो अगर आपके बच्चे की कोई बाहर तारीफ करता है ना, तो सबसे ज्यादा माँ बाप को खुशी होती है। तो वही वाली चीज है कि आपने कोई चीज क्रिएट करी एंड people when they start liking it, when they love it, तो आपको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं होता। फिर वो चीज़ आपको कोई रेवेन्यू देके जा रही है, कोई पैसा देके जा रही है, नहीं देके जा रही है, वो बात की बात है।
Correct. Money cannot buy that feeling. Yes, that's the thing. Excellent. तो आप जब सैड फील करते हो आप क्या करते हो? मैं सैड बहुत कम फील करता हूँ। अच्छा। और अगर मैं करता भी हूँ तो कभी कोई बहुत ज्यादा ही ऐसी वजह होगी कि मैं सैड फील करूँ, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होगा। क्योंकि आपको ये रियलाइज अगर खुद से ही अंदर से हो जाए कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और चीजें जो हैं वो पहले से भी दुनिया में वैसी ही चलती आई हैं, आगे भी वैसे ही होंगी। सो जब आप उतने समझदारी से चीजों को लेने लग जाते हो तो आई थिंक वो इमोशन जो है सैडनेस वाला होना चाहिए, क्योंकि एवरी इमोशन इज इम्पोर्टेंट, बट उस इमोशन को कैसे ओवरकम करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं जब सैड होता हूँ तो आई थिंक कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर शांत बैठता हूँ और अपने आप को टाइम देता हूँ, और वही रियलाइजेशन जो मैंने अभी बताया कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर समथिंग गुड, तो कोई बात नहीं है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और शायद इसके पीछे भी कोई अच्छा रीजन होगा, कुछ और अच्छा होने वाला होगा। जस्ट थिंक दैट एंड लेट इट गो। तो वो गो विद द फ्लो वाली फील में रहो। बिल्कुल, और एक्सेप्टेंस कि चलो अभी ठीक नहीं है बट कुछ अच्छा है, there's something better in place for me, it's okay, I'll accept this and move on. तो वो एक टाइम है ना, वो गोल घूमता है तो वो वापस आपको वहां पे लेके आएगा। बिल्कुल सही। तो आपके क्या मंत्र हैं? डू यू हैव एनी मंत्रास फॉर अ हैप्पी लाइफ, फॉर अ गुड लाइफ? हैप्पी लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र ही हैप्पी रहना है ना। तो जस्ट स्टे हैप्पी, कीप डूइंग थिंग्स, कीप लाइक कंसिस्टेंसी रखो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें। ट्राई टू डू मोर एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल चीजें करो, क्योंकि बदलाव वहीं से आता है या चेंजेस वही होती है जो पहले चीज किसी ने नहीं सुनी है या देखी है। तो उस तरह का, जैसे मैंने बम बोले के साथ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट ही किया था कि आई वाज डूइंग अ भोलेनाथ सॉन्ग, बट वो एक बिल्कुल ऐसी वाइब में, ऐसी एनर्जी के साथ कि पता नहीं वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, उसमें मुझे ऐसा कोई वो नहीं था, बट उसे एक्सेप्ट किया, लोगों ने प्यार दिया, तो फिर और कॉन्फिडेंस आया कि इस तरह की चीजें बन सकती है, और बहुत सारे लोगों ने फिर उसके बाद क्रिएट करी कुछ उसी तरह का कंटेंट, है ना। तो एटलीस्ट यू इंस्पायर्ड पीपल जो एक्सपेरिमेंट करने से डर रहे थे कि इस तरह के कोई गाने बनने चाहिए, लेकिन उसके बहुत सारे गाने बने, और मुझे लगता है हर लेबल है उसके बाद भोलेनाथ के गाने करे ही करे हैं। तो मुझसे तो बहुत सारे लेबल्स नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लेबल्स हैं जिन्होंने जिनको ये लगा कि नहीं, दिस कंटेंट हैज दैट रीच, पीपल वांट दिस काइंड ऑफ स्टफ, एंड वो फिर और लेबल्स ने भी किया। तो एक अच्छी चीज लगती है कि एटलीस्ट लोगों को काफी सारी चीजें सुनने को मिली उसके बाद। तो जस्ट टू बी लाइक यू हैव टू स्टे हैप्पी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, कभी एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, और जो लाइफ में हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और जो आपको यहाँ तक लेके आया है वो आपको यहाँ से आगे भी लेके जाएगा। तो इस थॉट के साथ आप रहो तो चीजें ठीक होंगी। वेरी पॉजिटिव माइंड यू हैव, आई मस्ट से। एंड आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? इज देयर समबडी, अ मेंटर और समबडी यू लुक अपॉन टू डिराइव इंस्पिरेशन? आई थिंक मुझे इंस्पिरेशन, मतलब मैं किसी को स्पेसिफिकली ऐसे नाम लेके नहीं बोलूंगा। मेरे डैड ने मुझे बहुत ज्यादा लाइक एक्सपीरियंस दिया है लाइफ का, और उससे काफी सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जिनसे मैंने अपनी फील्ड के लिए या म्यूजिक के बारे में काफी सारी चीजें जो हैं उनसे सीखने को मिली हैं। जैसे मैं जिनका आर्टिस्ट हूँ, जिनके साइड आर्टिस्ट हूँ मैं, वो है मिस्टर अनूप कुमार। तो उनके साथ जो है उनसे काफी कुछ मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जो नॉलेज है वो वहां से मिली है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी नॉलेज है, जैसे अब मैं 10 साल से अगर इस इंडस्ट्री में हूँ तो वो 30 साल से इस इंडस्ट्री में, तो दोनों की नॉलेज मिलके वो 40 साल की नॉलेज हो जाती है। तो वो 40 साल की नॉलेज जो है वो जो अभी लोग शुरू कर रहे हैं तो उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि आपको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ नॉलेज इस तरह की लेनी चाहिए। तो अगर मेरे फादर जो हैं वो 60+, तो वो उनके 60 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी अगर मैंने ले लिया और अपनी एज में ऐड कर दिया, तो शायद मैं, है ना, तो उस एज के लोगों के साथ भी बैठ के और वो सारी डिस्कशन, तो मैं हमेशा से मेरा ये ऐसा रहा है कि अपने से बड़ी एज के लोगों के साथ बैठना, उनसे चीजें पूछना, उनसे एक्सपीरियंस लेना, वो बहुत हेल्प करता है आपको वो अभी नहीं समझ आता, लेकिन आगे जाके लाइफ में वो जब सिचुएशंस उस तरह से बनती हैं, देन यू एक्चुअली नो बैक ऑफ योर माइंड कि इस सिचुएशन में ये चीज मुझे पता चली थी या ऐसा होता है।
तो वो बहुत हेल्प करता है। तो मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए लोगों से, Yes. वही है। वही ट्रेजर है लाइफ का, बिकॉज आपको फिर टूल्स होते हैं, आपको यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू हैंडल लाइफ। राइट 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 राइट। अब मुझे बताएं आपको कितनी पेरेंटल सपोर्ट मिली, बिकॉज मैं बहुत सारे यंग अडल्ट से काम करती हूँ एंड बच्चे मुझे कभी कभी कहते हैं कि आई वांट टू बी अ म्यूजिशियन और आई वांट टू बी अ स्क्रिप्ट राइटर, बट मुझे पेरेंट्स की इतनी सपोर्ट नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं बड़े होके पैसे कैसे कमाओगे, क्या होगा, फ्यूचर कैसे होगा। आपको कैसे सपोर्ट मिली, एंड पेरेंट्स को एक चीज बताएं कि पेरेंट्स को कैसे क्रिएटिव बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा इसको लेके सीरियस हो चुके हैं काफी हद तक, क्योंकि जब से सोशल मीडिया इतना ग्रो कर गया और पेरेंट्स को भी दिखता है कि वो यूट्यूबर है 20 साल का, वो इतना रेवेन्यू बना रहा है, वो इंस्टाग्राम पे है इन्फ्लुएंसर, वो उसको इतना मंथली वो पैसे कमा रहा है, तो अब वो तो बैक ऑफ द माइंड उनको नहीं रह गया कि आर्टिस्टिकली कोई भी कुछ भी चीज कर रहा है तो देयर इज अ वैल्यू। अब आप इस चीज से पैसे कमा सकते हो, ये तो समझ में आ गया है पेरेंट्स को, लेकिन फिर उनको वो स्ट्रगल दिखता है। लेकिन वो स्ट्रगल जो है उसी को समझना, उस चीज से ओवरकम करना, वो एक्चुअली वो स्ट्रगल नहीं है, वो एक जर्नी है। उस जर्नी में आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। आप जब तक पानी में कूदोगे नहीं, हाथ पैर मारोगे नहीं, तब तक आप तैरना सीखोगे। तो आपको वो छलांग तो मारनी पड़ेगी। अब कोई आपका हाथ पकड़ के बैठा रहेगा और आप छलांग नहीं मारोगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा। तो वो पेरेंट्स को आई थिंक इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि आप कूदने दो और हाथ पैर मारने दो। बचाने के लिए तो पेरेंट्स होते ही हैं, वो बैठे ही हैं ना, वो एवरीबडी इज देयर। अगर आप किसी भी सिचुएशन में कैसे भी होगे ना और उनको नहीं भी समझ आ रहा होगा कि इसको क्या करना है, तब भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे। तो वो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए और पेरेंट्स को एक स्ट्रेंथ देनी चाहिए ताकि बच्चा बहुत खुल के काम कर सके। कुछ भी चीज कर रहा है, नॉट ओनली म्यूजिक, आई एम सेइंग, वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो जस्ट सपोर्ट देम और गिव देम लाइक पॉजिटिव, वो रहिए उनके साथ पॉजिटिवली, उनको मोटिवेट कीजिए और फिर आप देखिए कि बच्चा किस तरह से काम करता है। क्योंकि अगर मेंटली प्रेशर रहेगा बच्चे पे तो वो उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा जैसा करना चाहिए। तो बस पेरेंट्स को तो इतना ही वो है। मेरे टाइम पे भी मुझे बहुत पॉजिटिव वो रहा। मेरे पापा को वैसे मतलब नॉट प्रोफेशनली बट शुरू से गानों का बहुत शौक था और वो म्यूजिक लवर है शुरू से। तो जब मैंने बोला कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ ट्राई करो, किस्मत आजमा। माहौल, घर का एनवायरनमेंट भी बड़ा म्यूजिकली ओरिएंटेड था। हाँ, मतलब मेरे घर में शुरू से वही था, सुबह से शाम तक गाने चल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और मैं भी साथ में गुनगुना रहा हूँ और भी ऐसे। तो वो शुरू से वैसी वाली वाइब थी। तो इट वाज एज अ लिसनर, बट अब वो लिसनर से प्रोफेशन में हो गई। तो अब वो अब घर में दूसरा माहौल भी हो गया कि अब मैं अपने गाने बनाता हूँ तो मैं पहले उन्हें सुनाता हूँ कि आप सुनो और बताओ। तो वो वाली चीज है। आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है कि जब आप आई थिंक 60 साल के हो तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने अपने जीवन के जो टाइम जो आपने जिया है, आपने कुछ अच्छी चीजें करी हैं जिसके लिए कुछ सालों तक आपको लोग याद रखें। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप जाओ दुनिया से तो आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने मतलब एक लाइफ को अच्छे से जिया है। तो मेरा सक्सेस तो वही है। मेरा सक्सेस मॉनेटरी उसमें नहीं है, मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों से सक्सेस काउंट नहीं करवाना है। और आप जब छोड़ के जाओ तो आप अपने जैसे कई लोगों को, मतलब अपने एक्सपीरियंस से कई लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारा आप उसे ज्ञान कह लो या कोई भी चीज है ना, तो आप वो जरूर दे के जाओ जिससे उनकी हेल्प हो उस लाइफ को बहुत आराम से स्मूथली जीने में। बस यही है मेरे लिए तो सक्सेस। हम दोनों का डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज अलाइन। मेरा भी यही है कि जब आप अपनी लेगेसी छोड़ के जाओ, आपके बच्चे भी आपको याद करें कि हाँ मेरे मम्मी या पापा ने ये छाप छोड़ी है, उन्होंने दूसरों की हेल्प करी, उन्होंने लोगों को सर्व किया किसी भी में, म्यूजिक के थ्रू, एनी फॉर्म, टू सर्व अदर्स, हेल्प अदर्स। वेरी ब्यूटीफुल। एंड एवरी सक्सेसफुल, आप ये समझना, जब भी इंसान सक्सेसफुल होता है ना तभी उसके अंदर वो हिम्मत आती है किसी को सर्व करने की। उससे पहले वो खुद किसी को ढूंढ रहा होता है जो उसकी हेल्प करे। करेक्ट। तो जिस दिन से आप किसी के लिए कुछ करने लग जाओगे ना तो आप ये समझ लेना कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप वो आपकी लाइफ में अभी कौन सा स्टेज चल रहा है ये तो आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा। करना है, एब्सोल्युटली।
राइट। मेरा तो दिल कर रहा है मैं ये कंटिन्यू करूं, 1 घंटे का चल सकता है, बट आई अंडरस्टैंड कि आपको ऑलमोस्ट 30 minutes have gone past. My last question to you is कि आप ये जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, who may be maybe your age or stage in their life, trying to make it in the music industry, उनके लिए कुछ प्लीज एडवाइस दीजिए, some guidelines. मुझे एडवाइस ये देनी है कि सबसे पहले तो यू शुड बी लाइक, आप कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हो तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो रखना है कि हाँ मैं एक चीज नहीं, मैं ऐसी 100 चीजें बना सकता हूँ। एंड यू शुड हैव दैट थिंग कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी क्रिएटिविटी को भी डस्टबिन में डाल सकता हूँ। तो एक उस तरह का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को रखें। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो भी म्यूजिशियन बनना चाहता है, एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंट रहिए आप रेगुलरली अपना काम करते रहिए। आप रिजल्ट्स की टेंशन मत, जैसे गीता में लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वो सेम वे में कि आप अपना काम करते रहो और जो भी चीजें होंगी वो अपने टाइम के हिसाब से वो चीजें होना अपने आप शुरू हो जाएंगी। तो आप वो कंसिस्टेंट रहिए। उसके अलावा आप मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये समझाना चाहूंगा, कोई भी अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। लाइक इफ यू आर अ गुड सिंगर, यू सिट एंड ट्राई टू लर्न प्रोग्रामिंग, म्यूजिक बनाना सीखिए, आप कुछ लिखना शुरू कीजिए, सो दैट व्हेन यू सिट इन अ स्टूडियो यू एक्चुअली नो दैट हाउ टू क्रिएट अ सॉन्ग पूरा किसी की हेल्प के बिना। तो आप म्यूजिक भी खुद कर रहे होंगे, आप लिख भी खुद रहे होंगे, आप कंपोज भी खुद कर रहे होंगे, आप गा भी खुद रहे होंगे। तो जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी और आप इस तरह से कर पाएंगे तो आपको एक्चुअली किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और जब आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होगी तो आप बहुत सारी चीजें खुद से क्रिएट कर रहे होंगे और आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आप ऑडियंस को वो कंटेंट देते जाओगे एंड एक दिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स सामने से आना शुरू हो जाएगा। तो बस पॉजिटिव रहो, खुश रहो, जो भी क्रिएट करो दिल से क्रिएट करो और लोगों को छोड़ के, मतलब लोगों के पास, ऑडियंस के पास वो रिलीज करके और उसे भूल जाओ। फिर वो कैसा वर्क कर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, आप अगली क्रिएटिविटी पे चलो। दैट्स इट। बहुत बढ़िया। और मेरे को सब एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे आपकी 2 मैसेजेस बहुत अच्छे लगे। एक तो एक्सपेरिमेंट करो, डरो मत, अपनी क्रिएटिविटी पे कॉन्फिडेंस रखो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड एंड गिफ्टेड वो पूरा टाइम डर में ही रहते हैं। They are fearful of sharing with the world. They are fearful of uploading music onto YouTube. So please overcome. Do it scared. If you're scared, do it scared, but do it. Do it. Yes. And also, like you beautifully said, कि अगर आप खुद happy होगे तभी आप दूसरों को happiness spread कर सकते हो. And जो अगर हमारी personal growth होगी तभी हम collective growth पे focus कर सकते हैं, collective evolution पे focus कर सकते हैं. And that's how we build a better world, a more positive, loving world. So मैंने आपसे बहुत अच्छी चीजें सीखी है एंड बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। वायरस, wish you all the very best. May the goodness in you inspire the best in others. I've really had a wonderful time interacting with you. Thank you so much for your time. Thank you so much. And I just want to add that you are doing a great job. लोगों को खुश रखना, लोगों के मुंह पे स्माइल लेके आना, हैप्पीनेस देना, ये बहुत अच्छी चीज है एंड आप ये कर रहे हो, so you are blessed. तो ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने आपको चुना है इस चीज के लिए, so you should be happy always और ऐसे ही खुशियां बांटते रहो। Thank you so much. It was really lovely talking to you. Thank you. Same here. And now you're a part of our tribe. We are in it together. Together we are stronger. Yes. Thank you, Bharat. I'll try to give more time. Yeah, sure. Yes. See you. Thank you. Thank you. Lots of my love. Bye-bye. Thank you. Bye.